guys, welcome or welcome back to my YouTube channel. If you're new here, I am Archika and I'm a CBSE 10th grader. So today I'll be doing a little study vlog and मैं अभी स्कूल से आई हूँ. अभी हमारे स्कूल के full timing start हो गया. That means I came home at like 3:30, which means I barely get any time for myself. So usually I take a break 3:30 से 4 o'clock तक and उसके बाद I start studying. But अभी फिलहाल it is 4:30, so थोड़ा सा delay हो गया, but that is fine. And मेरे एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 3 हफ्ते बाद से, विच लाइक मेरे को बहुत डर लग रहा है बिकॉज हमारे एग्जाम्स आर लाइक कंसेक्यूटिव डेज पे विदाउट एनी गैप एट ऑल एंड लाइक न्यू टीचर्स वगैरह है. सो लाइक ऑब्वियसली यू नीड टू गेट गुड मार्क्स इन दीज फर्स्ट set of exams. I know they don't even matter, but like I need to get good marks to create a good impression because we have like सारे नए teachers. So yes, we have to study today and अभी हम plan करेंगे कैसे पढ़ना है and then we'll study. Make sure that you stick to the very end because I'll be telling very interesting study tips and the books जिनसे मैं पढ़ती हूँ. एंड बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि मेरे पास स्टैंडर्ड मैथ्स है या बेसिक मैथ्स है. सो लेट मी क्लियर दैट आउट राइट नाउ. आई हैव स्टैंडर्ड मैथ्स. वेल एनीवेज, लेट अस बिगिन विद द व्लॉग. This is the outfit for the day. I'm feeling very, very productive and I am very excited. Before diving into studying, always start with a goal. Write down what you need to accomplish today. Whether it's like finishing a chapter, solving practice questions, or revising notes, just have a clear goal that keeps you motivated and on track. Well, now let us actually begin. Alright, so now I'll be writing my to-do list, and if you don't know, then I write my to-do list in this little planner. Okay, and I got this planner from Mr. DIY. It is very affordable. Now, anyways, so देखो हमें अभी तक syllabus नहीं मिला है कोई भी हमारे exams के लिए, but they're in 3 weeks, and for me 3 weeks is not a lot of time. So I think I need to actually like get started. और देखो कुछ क्लासेस थी जिनमें स्कूल में अच्छे से ध्यान नहीं दिया, तो लाइक वो चैप्टर्स में मेरे को ज़्यादा फोकस करना है. एंड लाइक सी, दिस इज़ अ लिटिल स्टडी टिप फ्रॉम माय साइड. जिन सब्जेक्ट्स में तुम वीक हो उनको अवॉइड करने की जगह उन पे ज़्यादा फोकस करो. लाइक एंड जो सब्जेक्ट्स में तुम अच्छे हो उनको बार बार करने की बजाय उनको कम ध्यान दो. फॉर एग्जाम्पल लाइक फॉर मी आई लाइक मैथ्स, सो मैं सारा टाइम मैथ्स करती रहती हूँ एंड मतलब मेरे को लग रहा होता है कि मैं पढ़ रही हूँ एंड आई एम गेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन विच इज़ नॉट ट्रू. बिकॉज like why am I doing stuff that I already know? Like instead, like on the other side, I'm very weak in SSC because मुझसे रट्टा नहीं मारा जाता चीज़ें like geography वगैरह में. I cannot learn that. So वो learn करने में को बहुत time लग जाता है, इसीलिए मेरी SSC weak है. So I should focus more on SSC rather than maths. So मैं तुम्हें same recommend करूँगी, जो subject तुम्हारा weak है उस पर तुम ज़्यादा फोकस करो, उसको ज़्यादा टाइम के लिए प्रैक्टिस करो एंड ट्राई टू लाइक डेली प्रैक्टिस करने का उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल यूर वीक इन मैथ्स, तो मैथ्स डेली प्रैक्टिस करो instead of like avoiding the subject because you're scared of it. Practice it daily and you will fall in love with the subject. मतलब अगर तुम्हारे अच्छे मार्क्स आएंगे you should automatically fall in love with the subject. I don't know if it works like that for you, but like मेरे लिए तो ऐसा ही होता है because subject नहीं पसंद होता अगर मेरे मार्क्स नहीं आ रहे उसमें. but अगर मार्क्स आने लग जाते हैं I like the subject, और मार्क्स तब के आएंगे जब तुम प्रैक्टिस करोगे. So make sure that you spend more time on the subject that you don't like की जगह focus more time on the subjects that you are bad at and focus less time on the subjects that you are good at. Now let us move on. Well, now I'm just writing my to-do list and basically I'll be writing my task in the order in which I'll be doing them, ताकि मेरे को ज़्यादा सोचना ना पड़े कि पहले क्या करना है बाद में क्या करना है. It always feels helpful. So मैं इसी order में पढ़ने वाली हूँ. ऑल राइट, नाउ एज मैं 4:30 के अराउंड पढ़ाई स्टार्ट कर रही हूँ और मुझे पता है कि मैं रात को बोरिंग सब्जेक्ट्स लाइक हिंदी एंड SSC नहीं पढ़ पाती हूँ. सो व्हाट आई डू इज अभी मैं हिंदी और SSC कंप्लीट करूँगी बिफोर आई गो नीचे टू फ्रेश माई माइंड अप. एंड उसके बाद व्हेन आई कम बैक आई बी डूइंग साइंस बिकॉज साइंस इज फन. आई लव डूइंग साइंस, सो आई कैन डू साइंस. सो लेट अस स्टार्ट विथ हिंदी. So as we're starting with Hindi, I grabbed my supplies. I'll be using a pen, these highlighters, sticky note, the actual textbook जिसमें पढ़ने वाली हूँ, and OSWAL के question papers. अगर मेरे को लाइक टाइम मिलता है ओनली देन आई विल बी एबल टू द क्वेश्चन बैंक, बट लाइक चैप्टर मेरे को रीड करके समझना तो है ही बुक से. बिकॉज लाइक जब क्लास में चैप्टर चल रहा था तब आई वॉज लिटरली स्लीपिंग, मेरे को कुछ भी समझ में नहीं आया. एंड लाइक वैसे भी मेरी हिंदी बहुत वीक है तो मेरे को हिंदी पे एक्स्ट्रा फोकस करना पड़ता है. बिकॉज अगर मैं एक्स्ट्रा फोकस नहीं करूँगी लाइक मेरा पूरा परसेंटेज ख़राब हो जाएगा हिंदी के कारण. बिकॉज आई एम लाइक नॉट गुड एट हिंदी स्टार्टिंग से. लाइक मेरे बेसिक कंसेप्ट आर नॉट क्लियर एट ऑल, तो मेरी स्पेलिंग मिस्टेक्स वगैरह बहुत ही ज़्यादा होती है. इसीलिए आई जस्ट नीड टू फोकस ऑन हिंदी अ लिटिल बिट. आई मीन अभी लास्ट ईयर ही है, उसके बाद तो 11th-12th में आई वोंट हैव हिंदी, देन आई नॉट हैव टू फोकस ऑन इट. बट अभी तो पढ़ना पड़ रहा है इसलिए पढ़ रहे हैं.
वेल बुक से रीड करके मेरे को ढंग से समझ आ नहीं रहा था बिकॉज बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स यूज़ हो रखे थे. सो आई डिसाइडेड टू वॉच अ लिटिल यूट्यूब वीडियो ऑन इट एंड वीडियो के बाद मेरे को समझ आ गया था. ठीक है, उसके बाद मेरे को टाइम मिल गया. सो आई थॉट कि आई डू उस वाल के क्वेश्चन बैंक्स. ये बाय द वे 2023 की बुक है एंड आई बोरोड इट फ्रॉम अ फ्रेंड. लाइक आई डिड नॉट परचेज इट अलग से, बट लाइक अच्छी बात है, इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी हिंदी के लिए. तो मैंने पूरा कंप्लीट किया एंड ये करते करते 5:22 हो गए थे. दैट मीन्स ऑलमोस्ट 1 आवर. उसके बाद आई डिसाइडेड टू डू SST. ठीक है, आई वाज स्टडिंग एज इफ आई एम टीचिंग समबडी एल्स बिकॉज उस तरीके से मेरे को इजीली लर्न होता है. दिस इज़ अ वेरी वेरी इफेक्टिव स्टडी मेथड. अगर तुम्हें कोई डिफिकल्ट चीज़ बोरिंग लग रही है, तुम्हें लर्न नहीं हो पा रही, देन यू कैन जस्ट ट्राई इट आउट. ठीक है, अब ना बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ लिया था, मेरे को ज़्यादा कुछ लर्न हो नहीं रहा था बिकॉज लाइक आई वॉज वेरी वेरी स्लीपी. So eventually I just gave up because I was so tired. Like, oh my god. ओके गाइज, SST का ये वाला पार्ट इतना ज़्यादा बोरिंग है. मतलब मेरे को इतनी ज़्यादा नींद आ रही है, मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा. लाइक माई आइज आर फिजिकली हर्टिंग. सो आई विल मेक कॉफ़ी एंड आई विल सी कि इफ़ दैट गेट्स मी द बूस्ट टू स्टार्ट स्टडिंग. तो पहले जाके कॉफ़ी बनाते हैं. लेट्स गो. सबसे पहले कॉफ़ी बनाने के लिए मैंने मिल्क निकाला. बाय द वे दिस इज़ माई स्पेशल रेसिपी. मेरे को पूरे किचन में सिर्फ कॉफ़ी बनानी आती है और कुछ बनाना नहीं आता. एंड कभी कभी मैं मैगी भी बना लेती हूँ. इफ़ यू वांट मी टू मेक अ लिटिल शॉर्ट ऑन मेकिंग लाइक मैगी देन लेट मी नो. ठीक है, तो मैंने चेक करी थी कि दूध ही है और दही नहीं है बिकॉज मैं बहुत बार ऐसे दूध की जगह कुछ और डाल चुकी हूँ. सो आई वाज चेकिंग एंड उसके बाद व्हेन आई वाज कन्फर्म्ड कि ये दूध ही है तो मैंने उसको डाला अपने ब्लेंडर में. ठीक है, एंड मतलब मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, I am going to mess this up somehow because like obviously guys it's me. Well after that मैं ये दिखा रही थी मैं कॉफ़ी का पैकेट डालना है और वो अंदर ही गिर गया. उसके बाद टेक 2 लिया एंड फिर ढंग से डल गया. Thank God. Well anyways after that I added some sugar because I like my coffee a little sweet. So I added like half a teaspoon sugar and उसके बाद we just blended it. And I don't know why my blender makes इतनी ज़्यादा आवाज़ जब blend करता है, but कोई बात नहीं. It is very satisfying to watch the coffee come up and foam up. It's like so cool. I feel like a barista girl. Anyways, now I just had to pour my coffee into my little mug, and this is like my favorite mug. I don't know why, I just like it because it's plain and black and like it does not have anything weird on it. Anyways, our coffee is ready. I am so happy. Finally, I have coffee and I can drink it and feel better. Yay! Finally, मैंने कॉफ़ी बना लिया and it looks really nice. And अब इतनी गर्मी हो चुकी है कि अपनी ड्रिंक्स में मैं आइस डाल के पी सकूँ. So let's drink this cold coffee now. I really like this. I always love cold coffee. And मतलब एक चीज़ तो मैं बताती हूँ अपने बारे में, मेरे को ना गरम गरम कॉफ़ी बिल्कुल नहीं पसंद. मेरे को सिर्फ ठंडी कॉफ़ी अच्छी लगती है. गरम कॉफ़ी मेरे को सिर्फ एक बार अच्छी लगी थी जब मैं लाइक किसी की वेडिंग में गई थी. उसके अलावा जब भी मैंने गरम कॉफ़ी पी है मेरे को कभी भी अच्छी नहीं लगी है. Anyways, let's continue with our studies. So after taking that little break, I had to resume my study session. So अब मतलब मैं बुक से तो पढ़ चुकी थी एंड मेरे को जितना समझ आना था, जितना याद होना था वो हो चुका था. आई कुड नॉट डू एनीथिंग मोर. सो आई जस्ट डिसाइडेड टू लुक अप द राज सर का लेक्चर. आई ऑलरेडी वॉच दिस लेक्चर ट्वाइस एंड तब भी मुझे कुछ याद नहीं हुआ है बिकॉज आई कुड नॉट फोकस अच्छे से. एंड सी शॉर्ट ब्रेक्स लेना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड लाइक ब्रेक्स में डू नॉट गो ऑन सोशल मीडिया, make yourself something, drink water, do a little movement or stretching so that you're energized. Because छोटे छोटे breaks लेना बहुत ज़्यादा important रहता है when you're like studying for like long hours. वैसे I don't take like long study sessions but like still I get tired very very easily. सो इसीलिए मतलब मेरे को देखना होता है. एंड लाइक बहुत लोग बोलते हैं कि मैं एक डिस्ट्रैक्शन फ्री जोन कैसे क्रिएट करती हूँ. सी बेसिकली व्हेन आई एम फिल्मिंग माई सेल्फ फॉर लाइक यूट्यूब एंड स्टफ, इट इज़ वेरी हार्ड टू गेट डिस्ट्रैक्टेड बिकॉज ऑब्वियसली आई विल नॉट टच माई फोन इफ आई एम फिल्मिंग माई सेल्फ. लाइक जब मेरा यूट्यूब चैनल नहीं भी था ना, तब ऑल्सो आई फिल्म माई सेल्फ ओनली ताकि मैं डिस्ट्रैक्ट ना हो. बिकॉज अगर मैं अपने आपको फिल्म कर रही हूँ आई विल नॉट टच माई फोन. ऑटोमेटिकली टच नहीं होता. एनीवेज आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मेरा पूरा कंप्लीट हो गया था. फाइनली आई वाज सो प्राउड भाई बिकॉज आई वाज ट्राइंग टू कंप्लीट दिस इतने ज़्यादा टाइम से ना. एंड ये चीज़ चेक करते हुए मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था. एनीवेज अब आई वाज रेडी टू गो नीचे एंड लुक एट द वार्म लाइटिंग इन माई रूम. आई लव इट अ लॉट. देन आई वेंट नीचे एंड आई रियली लव स्प्रिंग सीजन. हर जगह फ्लावर्स है. इट्स वेरी प्रिटी एंड वेरी नाइस. एंड वापस आते आते रात हो गई थी. जब मैं गई थी तब दिन लग रहा था. But I had fun and it was a good day overall.
एंड देखो स्विमिंग पूल में भी पानी भर चुका है. दैट मीन्स समर इज फाइनली हियर एंड हियर आई एम इन माई सोसाइटी का लिफ्ट गोइंग टू माई फ्लोर. नाउ माई डैड गेव मी डिनर जिसमें हमने राइस खाए थे एंड राइस में नमक कम था बट दैट इज़ फाइन. उसके बाद लाइक 9-10 हो चुके थे एंड आई हैड साइंस टू डू. सो विल डू साइंस अब. ठीक है, सब कुछ हो चुका था. आई जस्ट हैड केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट लेफ्ट. सो आई चेंज इनटू मेरे रात का आउटफिट बिकॉज लाइक आई नीड टू बी इन समथिंग मोर कंफर्टेबल. एंड अब हम करेंगे पढ़ाई. बट उससे पहले मेरी मम्मी मेरे को नीचे ले गई अपने साथ वॉक करवाने. लाइक रोज का है मेरा. आई गो ऑन वॉक्स विद माई मॉम एंड वी टॉक अबाउट आवर डे. इट्स रियली फन. एंड या सो आफ्टर दैट वॉक आई हैड टू स्टडी. ठीक है, तो अब मैं पहले पढ़ रही हूँ केमिस्ट्री एंड मैं मेनली लाइक एक्टिविटी से फोकस कर रही हूँ एंड क्वेश्चंस पे. सी अगर तुम चैप्टर रिवाइज करते हो फोकस ऑन द टॉपिक जो तुम्हें पहले अच्छे से नहीं आए थे इंस्टेड ऑफ डूइंग द इंटायर थिंग. दिस सेव्स योर टाइम अलॉट. जब मैं लिखती हूँ कि पर्टिकुलर चैप्टर को करना है उसका मेरे को ऑटोमेटिकली मतलब है कि जो मेरे को नहीं आता वो रिवाइज करना है. जो ऑलरेडी आता है उसको बार बार पढ़ के कुछ नहीं होने वाला. सो बस प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन तो मेरे को आता है नहीं आता एंड बैलेंसिंग की क्वेश्चन करी थी मैं एंड एक्टिविटीज़ वगैरह लर्न करी थी एंड स्टफ. एंड उसके बाद आई वॉज डन विद केमिस्ट्री. नाउ आई हैड टू डू बायो एंड लाइक ऑलमोस्ट 10:30 हो गए थे. ठीक है, एंड मेरे को ना मतलब 11 o'clock से पहले पहले कंप्लीट करना था. तो मैंने एनसीईआरटी चेक करी एंड आई रियलाइज कि मतलब ये मेरे को आता ही है जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है. एंड मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी कर चुकी हूँ. सो आई नो द आंसर टू दोज क्वेश्चंस. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग इट फ्रॉम एनसीईआरटी आई डिसाइडेड कि मैं किसी और बुक से कर लूँ. ठीक है, बिकॉज ये सब मैं कर चुकी हूँ. ये टॉपिक हमने क्लास में कर लिया था तो ये मैं भी रिवाइज नहीं करूँगी. बट लाइक आई रिवाइज हार्ट वाला पोर्शन एंड आई रिवाइज रेस्पिरेशन कम्प्लीटली. सो आई बी रिवाइजिंग इट फ्रॉम सम अदर बुक. नाउ लेट अस गो. ठीक है, तो बेसिकली आई गॉट मॉडर्न एबीसी. इस बुक से मैंने कभी भी नहीं पढ़ा है. लाइक मतलब 10th में स्पेशली बायोलॉजी की. लाइक दिस इज माई फर्स्ट टाइम स्टडिंग फ्रॉम दिस बुक एंड ऑनेस्टली माई एक्सपीरियंस वॉज गुड. द क्वेश्चंस आर रियली नाइस एंड मतलब हाई लेवल के हैं मतलब कंपेयर टू एनसीईआरटी. आई मीन ऑब्वियसली इट्स बायोलॉजी. एवरीथिंग इज रट्टाफिकेशन. आई एम सॉरी इफ समवन लाइक्स बायोलॉजी बट लाइक या सारे क्वेश्चंस आर गुड लेवल के एंड बहुत सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है. मेनली आई वाज प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस बिकॉज लाइक आई डोंट वांट टू स्पेंड माय टाइम लर्निंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन व्हेन आई हैव ऑलरेडी रेड द सेम थिंग लाइक 4 to 5 times. सो आई वाज जस्ट प्रैक्टिसिंग ऑल द क्वेश्चंस एंड लाइक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद ऑब्वियसली आई वाज वैलिडेटिंग माई आंसर्स एज वेल. क्वेश्चन प्रैक्टिस करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी रटने से. Okay guys, now I'm done with everything that I was supposed to do एंड लाइक मेरी वॉइस थोड़ी सी सिक साउंड कर रही होगी बिकॉज मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रखा है. बट आई एम सुपर सुपर प्राउड. मतलब अगर तुम कुछ टास्क असाइन करते हो अपने आप को एंड इफ़ यू कंप्लीट ऑल ऑफ देम द फीलिंग इज़ अनमैच्ड. आई फील रियली गुड and I hope that you felt good after watching this video. And if this motivated you, then make sure to leave a like down below and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. See you in the next one guys. Bye bye.